BLJC के सभी संत जनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। आज रविवार के दिन के आराधना में हम सब लोग ऑनलाइन संगति में आने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आप जहाँ कहीं भी हो मसीह के साथ में जुड़े रहिए। और अब अपने रविवार के इस आराधना के आरंभ के लिए हम लोग दुआ करेंगे। हमारा प्रभु महान है। बीते हुए दिनों में हम सब लोगों को अपने आंखों की पुतले की मानंद संभाल कर आज उसके पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर हम सब लोगों को परमेश्वर ने अपने अपने घर में रहकर प्रभु के साथ में जुड़ने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया। इसके लिए हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर मेरे प्रभु। जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर, नहीं बदलने वाला खुदा, हमारे की प्रार्थना विनती को सुनना मेरे अब्बा। हमारी स्तुतियों की भेंट को तू स्वीकार करना मेरे परमेश्वर। अब तक तूने बचाए रखा, संभाला, चलाया, आगे भी आप संभालिए, अब चलाइए आपके नाम की महिमा के लिए। जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने देना, और जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। हालेलुया। सारा महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते, सुनकर कबूल कर लेना। तो आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। एक पिछले 2-3 सप्ताह से हम लोग तमिल गीत या मराठी गीत नहीं गाए थे, पूरा हिंदी गाकर हम लोग आराधना किए। आज एक तमिल गीत गाएंगे। कोरोना 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 एक पातालो पेचिनाना। कोरोना 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 एक पातालो पेचिनाना। मरण गुरुजी भयवेना कोरोना 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 एक पेचनाना। राज्य लड़की कतरी पर सभी राज्य लड़की கத்தரி வருகையோ சமீபமாய் இருக்குது. மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளு. நீ மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளு. வந்தா கிருபை இல்லைன்னா நியாயத்திற்கு. வந்தா கிருபை இல்லைன்னா நியாயத்திற்கு. கொரோனா 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 இங்கு பார்த்தால் இந்த பேச்சு தானா. கொரோனா 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 एक पाता पेचनाना। मरणत गुरुजी भयवेना उनकाग येसु मरिचारे सिलुवैयिल ताना। मरणत गुरुजी भयवेना उनकाग येसु मरिचारे सिलुवैयिल ताना। कोरोना 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 एक पाता पेचनाना।
பஞ்சங்களும் ஏற்படும், வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் விளைச்சலை அழிச்சிடும். கொள்ளை நோய்களும் பஞ்சங்களும் ஏற்படும், வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் விளைச்சலை அழிச்சிடும். இது வேதம் சொன்னது, இது நிறைவேறுது. இது வேதம் சொன்னது, இது நிறைவேறுது. வார்த்தையை நம்பிடு, வாழ்க்கையை தந்திடு. வார்த்தையை நம்பிடு, வாழ்க்கையை தந்திடு. கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா. கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா. மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம், உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா. மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம், உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா. கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா. கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா. கண்ணுக்கு தெரியாது, இருமைக்கு பயப்படாது, காணக்கூடாத கர்த்தர் இயேசுவும் கூட உண்டு. கண்ணுக்கு தெரியாது, இருமைக்கு பயப்படாது, காணக்கூடாத கர்த்தர் இயேசுவும் கூட உண்டு. மனதிரும்பு, இனி காலம் செல்லாது. மனதிரும்பு, இனி காலம் செல்லாது. இயேசு வருகிறார், எதிர்கொள்ள புறப்படு. இயேசு வருகிறார், எதிர்கொள்ள புறப்படு. கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா. கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா. மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம், உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா. மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம், உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா. கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா. கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா. மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம், உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா. மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம், உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா. கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா. கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா. இந்த பாடலை ஊட்டியில கடைசி கால செய்தியில ஊழியம் செய்கின்ற பாஸ்டர் சியோன் ஜெபராஜ் ஐயா அவர்கள் எழுதி அவரே பாடின பாட்டு. இந்த பாடலை பாடுறதுக்கு முன்னாடி நான் அவர்கிட்ட கால் பண்ணி கேட்டிருந்தேன், ஐயா ஆன்லைன்ல ஃபெலோஷிப் நடத்தும் போது உங்க பாடலை பாடலாமான்ட்டு. தாராளமா பாடுங்க நாங்க. அதனாலதான் இன்னைக்கு அந்த பாட்டை பாடணும். கர்த்தர் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. அடுத்தபடியாக ஒரு பஞ்சாபி பாடல் பாடலாம். Hey, bye. Hey, bye. क्योंकि हम लोग जब ऑनलाइन फेलोशिप में जब आते हैं तो पूरा भारत देश के अंदर से अपने साथ में लोग जुड़कर देखते हैं, इसलिए हम अब एक पंजाबी सॉन्ग गाएंगे। जीवन मिलिया मिलिया आशीषी टहरी टहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष टहरी टहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष टहरी टहरी बरकत आई आई है खुदा।
तेरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा मेरे नाल वो बन जाना ख्याल रखता हर पल का मेरे नाल वो बन जाना ख्याल रखता हर पल का मेरे दुख सुख का साथी मेरे नाल नाल चलना मेरे दुख सुख का साथी मेरे नाल नाल चलना ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना कराना महिमा महिमा है खुदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना कराना महिमा महिमा है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा बंधन टूट गए लंबी मुक गए अधरू सुख गए खुदा बंधन टूट गए लंबी मुक गए अधरू सुख गए खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा पढ़िया और तरस तेरे देखा मैनू चंगा भी करिया ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा पढ़िया और तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया चाहे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा चाहे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा बंधन टूट गए काम भी मुक गए अधरू सुख गए खुदा बंधन टूट गए काम भी मुक गए अधरू सुख गए खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन जीसस एक हिंदी गीत गाएंगे अंतिम दिनों का अभिषेक Amen, Jesus. अंतिम दिनों के अभिषेक
सारे लोगों के ऊपर तुम्हें धरती का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें अंतिम दिनों के अभिषेक। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें धरती का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तूफान के लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तूफान के लेके की हड्डियों की तराइयों में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वारी तुम्हें पवित्र आत्मा से नबुवत करूं। की हड्डियों की तराइयों में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वारी अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तूफान का लेके आ, नदी आत्मा का हम पर बहा। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इज़राइल के खुदा, वही अग्नि को हम पर तुम्हें। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इज़राइल
जीसस हमारे बीच में भाई प्रशांत है, वो एक गीत गाएंगे। उसके बाद तुम लोग भाई Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ। फिर साज बजाने से मिलकर गाने में, फिर साज बजाने से मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है,
अभी अनु, रेणु, धनु, रोशनी, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, वो गीत गाएंगे। चलो, गीत है तुम्हारे पास? अच्छा, जोर से गाने का चालू कर, आवाज आना चाहिए। Good. महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। ला 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 जीना उसके लिए है, मरना उसके लिए है। जीना उसके लिए है, मरना उसके लिए है। जो भी हम कर सकेंगे, करना उसके लिए है। जो भी हम कर सकेंगे, करना उसके लिए है। चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे, चाहे ये दुनिया हम आगे बढ़ते जाएंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। ला 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 हाथों में हाथ होगा, यीशु का साथ होगा। हाथों में हाथ होगा, यीशु का साथ होगा। यीशु जहाँ हो आप होगा। हमको रखेगा यीशु, जहाँ वो आप होगा। वो सच्चा जिंदा खुदा है, उसी को जाएंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। आमीन। परमेश्वर इन बच्चों को आशीष करे। थैंक यू जीसस। आमीन।
Amen, Jesus. एक हिंदी गीत गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। बच्चे लोगों के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा हुआ है। परमेश्वर इन बच्चों को बहुत आयत से आशीष करे। तो आइए, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है, इसलिए हम सब जन मिलकर इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, उसमें जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, उसमें जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। और डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जुड़ रहता था, और रास्ता भी न देता था। वो ही पानी जुड़ रहता था, और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत
न जात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की न जात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की न जात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की न जात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की न जात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की न जात के काम देखो। हालेलुया, praise the Lord. भाई और एक தமிழ் கீத் गाएंगे. ஊரில் இந்த உலகத்தில் உங்களை போல யாரையும் நான் பார்க்கல. सच में परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, गांव में या देश में आपके जैसे मैंने किसी को भी नहीं देखा। इसका मतलब है, मतलब यीशु मसीह के बारे में उस कवि इस रीति से वो वर्णन करता है। ஊரிலே இந்த உலகத்தில உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல. நாட்டில நம்ம நகரத்தில உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல. ஊரில இந்த உலகத்தில உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல. நாட்டில நம்ம நகரத்தில உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல. சாத்தானும் சபையில வந்து ஆடுறா, அப்பாவை பார்த்தாலே தலை தெரிச்சு ஓடுறா. சாத்தானும் சபையில வந்து ஆடுறா, அப்பாவை பார்த்தாலே தலை தெரிச்சு ஓடுறா. எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா, எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை. எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா, எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை. ஊரில் இந்த உலகத்தில் உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல. நாட்டில் நம்ம நகரத்தில் உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல. சாத்தானு சபையில வந்து ஆடுறா, அப்பாவை பார்த்தாலே தலை தெரிச்சு ஓடுறா. சாத்தானு சபையில வந்து ஆடுறா, அப்பாவை பார்த்தாலே தலை தெரிச்சு ஓடுறா. எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா, எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை. எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா, எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை. செங்கடலும் பிளந்தவரும் நீயே, எங்களை கண்மலை மேல் உயர்த்துபவரும் நீயே. செங்கடலை பிளந்தவரும் நீயே, எங்களை கண்மலை மேல் உயர்த்துபவரும் நீயே. குஷ்டரோகி 10 பேரை குணமாக்கி விட்டீரே, செத்து போன லாசருவை எழுந்து நடக்க வச்சீரே. குஷ்டரோகி 10 பேரை குணமாக்கி விட்டீரே, செத்து போன லாசருவை எழுந்து நடக்க வச்சீரே. ஆபிரகாமின் தேவனை நான் கண்டுட்டேன், என் ஆயுள் வரைக்கும் அவர் புகழ பாடுவேன். ஆபிரகாமின் தேவனை நான் கண்டுட்டேன், அவர் வரைக்கும் அவர் புகழ பாடுவேன். எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா, எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை. எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா, எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை. ஊரில் இந்த உலகத்தில் உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல. நாட்டில் நம்ம நகரத்தில் உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல. சாத்தானும் சபையில வந்து ஆடுறா, அப்பாவை பார்த்தாலே தலை தெரிச்சு ஓடுறா. சாத்தானும் சபையில வந்து ஆடுறா, அப்பாவை பார்த்தாலே தலை தெரிச்சு ஓடுறா. எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா, எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை. வானம் பூமி எல்லாம்
படைப்பு நாங்க வாழறது அப்பா உங்க தயவு லா, 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 லா. லா, 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 லா. வானம் பூமி எல்லாம் உங்க படைப்பு நாங்க வாழறது அப்பா உங்க தயவு பொல்லாத வழியிலே வாழத்தான முடியல அப்பாவி என்னை இந்த ஊரு ஜனம் மதிக்கல பொல்லாத பூமியில வாழத்தான முடியல அப்பாவி என்னை இந்த ஊரு ஜனம் மதிக்கல ஆவியான தேவனை நான் கண்டுட்டேன் என் ஆத்துமாவை அவரிடத்தில் கண்டுட்டேன் ஆவியான தேவனை நான் கண்டுட்டேன் என் ஆத்துமாவை அவரிடத்தில் கண்டுட்டேன் எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா எல்லாம் 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 உங்க தேவன் எல்லாம் 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 உங்க பாவிகளை தேடி வந்த தெய்வமே எங்கள் பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்ட மெய்ப்பரே லா, 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 லா. லா, 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 லா. பாவிகளை தேடி வந்த தெய்வமே எங்கள் பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்ட மெய்ப்பரே நீதியை நிறைவேற்ற சொன்ன எங்க நேசரே நியாய தீர்ப்பு தரும் காத்திருக்கும் இயேசுவே நீதியை நிறைவேற்ற சொன்ன எங்க நேசரே நியாய தீர்ப்பு தர காத்திருக்கும் இயேசுவே கல்வாரியில் ரத்தம் சிந்தின தேவனே எசவன தோட்டத்திலே கதறி அழுத இறைவனே கல்வாரியில் ரத்தம் சிந்தின தேவனே எசவன தோட்டத்திலே கதறி அழுத இறைவனே எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை ஊர்ல இந்த உலகத்துல உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல நாட்டுல இந்த நகரத்துல உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல சாத்தானும் சபையில வந்து ஆடுறான் அப்பாவை பார்த்தாலே தலை தெரிச்சு ஓடுறான் சாத்தானும் சபையில வந்து ஆடுறான் அப்பாவை பார்த்தாலே தலை தெரிச்சு ஓடுறான் எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை கடன் தொல்லை கஷ்டம் இல்லை எனக்கு இப்போ காணிக்கையில் கொடுக்கிறேன் நான் சபைக்கு லா, 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 லா. கடன் தொல்லை கஷ்டம் இல்லை எனக்கு இப்போ காணிக்கையில் கொடுக்கிறேன் நான் சபைக்கு பரிசுத்த தேவனையே நம்பி நீ வந்திடு பாவை சுமைகளையும் சாட்சியாக சொல்லிடு பரிசுத்த தேவனையே நம்பி நீ வந்திடு பாவை சுமைகளையும் சாட்சியாக சொல்லிடு ஆண்டவரின் வருகை உலகில் நிச்சயம் அதுக்குள்ள மனத்திரும்பி வந்திடுங்க சீக்கிரம் ஆண்டவரின் வருகை உலகில் நிச்சயம் அதுக்குள்ள மனத்திரும்பி வந்துடுங்க சீக்கிரம் எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை இந்த உலகத்தில உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல நாட்டுல இந்த நகரத்தில உங்களை போல யாரையும் நானும் பார்க்கல சாத்தானு சபையில வந்து ஆடுறான் அப்பாவை பார்த்தாலே தலை தெரிச்சு ஓடுறான் சாத்தானு சபையில வந்து ஆடுறான் அப்பாவை பார்த்தாலே தலை தெரிச்சு ஓடுறான் எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை ஐயா எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை அப்பா எல்லாம் 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 உங்க வல்லமை हालेलुया आइए आखिर में एक गीत गाएंगे यह दुनिया सांगे ते सांगू दे मैं भजन करो प्रभु यीशुचा वो मोबाइल
ये गाना किसके पास है? ये वीडियो चालू है, कैमरा ये निकालो उधर लेकर इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है। चित्रा तेरा मोबाइल पे उसमें वो गाना रहेगा, निकाल देना। हा दुनिया सांगायचे सांगू दे. सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम. स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है. स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है. सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम. हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम. स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है. स्वर्ग में धरती दूजा कोई नाम नहीं है. सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम. सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम. सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम. स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है. स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है. सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम.
सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, हमको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम, हमको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। ला 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 आइए आखिर में एक मराठी गीत गाएंगे, उसके बाद में हम लोग संदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे। दुनिया सांगायचे सांगू हाँ दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया 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 सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करूं प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया 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 सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, स्वर्ग देनाचो आभार माना, शांति देनाचो आभार माना, स्वर्ग देनाचो आभार माना, शांति देनाचो आभार माना, दुनिया दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, प्रेम देनाचो आभार माना, आनंद देनाचो आभार माना, प्रेम देनाचो आभार माना, आनंद देनाचो आभार माना, दुनिया 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 सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया 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 सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो, दुनिया सांगते सांगोंदे मैं भजन करे प्रभु यीशु जो।
सबको जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए अब हम लोग कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। मसीह के अंदर मेरे प्यारे भाई और बहनों, महाराष्ट्र के अंदर से, पंजाब के अंदर से, कर्नाटक के अंदर से हमारे साथ में जुड़े हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब वचन का समय है, अब वचन का समय है। हम लोग वचन के अंदर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु महान है। वो कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है। उस परमेश्वर का कलाम के अंदर हम लोग थोड़ी बहुत ध्यान करेंगे, क्योंकि वचन के अंदर जीवन है। आइए हम लोग वो वचन को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29वां वचन, उसमें 29वां अध्याय में हम 9वां वचन को पढ़ेंगे। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। हे बाप, दुआ करेंगे हम लोग। हमारे बीच में भाई प्रशांत वो दुआ करेंगे वचन के लिए। जीसस, हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया। आज हमें आपको बताया, इसके ऊपर बड़ा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे कठिन समय में भी आप हमारे साथ रहकर चला रहे हैं, इसलिए प्रभु आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है प्रभु जी, आपको पता है प्रभु जी, पर उस सब से, इन सब कठिनाइयों से हमें बचाया, आपके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का सुंदर सा समय आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आपकी इच्छा हमारे जीवन में चलना प्रभु जी, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए मदद करना प्रभु जी। आज का सुंदर समय आपने दिया है। हालेलुया, आपके गीतों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हम आगे बढ़ने के लिए मदद करना प्रभु जी। आगे का समय वचन के पास्टर जी के साथ आप रहकर चलाए प्रभु जी। आपका वचन हम सुनकर उसके हिसाब से चलने के लिए मदद करना प्रभु जी। हालेलुया, इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर लें लॉर्ड। फिर से हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को। तब प्रजा अच्छा। के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। पवित्र शास्त्र कहता है, लोग परमेश्वर के लिए कैसे दिए करके बोलता है, पूरे मन से दिए। इसके लिए लोग परमेश्वर के लिए पूरे मन से दिए, इसके और उत्तम मन से दिए और उत्साह के साथ में दिए। दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ करके हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, लूक 21वां अध्याय, उसमें 1, 2, 3 वचन को पढ़ेंगे। फिर अपने आंख उठाकर हाँ। धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। हाँ। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। हाँ। तब उसने कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा से
इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर डाला है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पहला हम लोगों ने वचन पढ़े थे, उसमें शास्त्र लेख कहता है कि दाऊद के साथ जितने भी लोग थे वे लोग पूरे मन से प्रोत्साहित के साथ, मतलब उत्साह के साथ परमेश्वर के लिए दिए। अब यहां नया करार में हम लोग देखते हैं परमेश्वर के सामने जब लोग, धनवान लोग दान पेटी में अपने दान को डालते हुए परमेश्वर ने देखे, और एक गरीब विधवा वहां आकर 2 पैसे को डालती है, उसको भी प्रभु देख रहा है। एक तरफ धनवान लोग भर भर कर डाल रहे हैं दान पेटी में, उसको भी परमेश्वर देखे, और दूसरी तरफ एक विधवा स्त्री आकर 2 पैसे को डालती है, उसे भी वो देखा। और देखकर परमेश्वर का कलाम कहता है 3 वचन में, इस गरीब विधवा बाकी जितने भी धनवान लोग वहां दान दिए उससे अधिक इसने परमेश्वर के लिए दान दिया है करके मैं सच तुम लोगों को बताता हूं। और 4 वचन में कहता है, वे सब लोग अपने पास जो भरपूरी से धन था उसके अंदर से निकालकर डाले प्रभु के लिए। लेकिन यह विधवा स्त्री जो है अपनी गरीबी की हालात में अपने जीवन के लिए जो रखी थी वो सारी चीजों को प्रभु के लिए डाल दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जुना करार के अंदर हम लोग देखते हैं दाऊद के साथ में जो लोग थे वे लोग उत्तम हृदय के साथ और उत्साह के साथ यहोवा के लिए दिए, और इस बात को देखकर दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। और उसके बाद में देखते हैं कि यहां नया करार के अंदर सारे श्रीमंत लोग, धनवान लोग अपने पास जो भरपूरी है उसमें से निकालकर प्रभु के लिए दे रहे हैं, और वही जगह के अंदर एक विधवा स्त्री जो अपने जीवन के लिए जो रखी थी वो सारी पैसे को क्या कर दिया, प्रभु के लिए दे दिया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, क्योंकि शास्त्र लेख हमें इस रीति से सिखाता है, परमेश्वर के लिए जो कोई व्यक्ति देता है उसके लिए दिया जाता है। परमेश्वर के लिए जो कोई व्यक्ति देता है उसके लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम हमारे हाथों को परमेश्वर के काम के लिए पीछे हटाना नहीं चाहिए। परमेश्वर के काम के लिए हम जब अपने हाथों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर भरपूरी से उसको आपको लौटा कर देते हैं। हमारा प्रभु किसी का कर्जदार नहीं बनते। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं बनते। हमारा प्रभु का कलाम कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर के लिए देना हम लोग लड़कपन से ही सीखते आ रहे हैं। कैसे भी हालात क्यों ना हो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को मिलना चाहिए। परमेश्वर का जो है उसको हम परमेश्वर के लिए जब देते हैं उस समय में परमेश्वर हमारे हालात को बदल देते हैं। हमारा प्रभु आज भी वो जिंदा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह
कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। देखिए दूसरा इतिहास के अंदर 31वां अध्याय 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 31वां अध्याय 5वां वचन, 2 நாளாகமம் 31வது அதிகாரம் 5வது வார்த்தை। यह आज्ञा सुनते ही हाँ इजरायली अन्न, हाँ नया दाख मधु, हाँ तेल, हाँ मधु आदि हाँ। खेती की सब भांति की पहली उपज हाँ। बहुतायत से देने हाँ। और सब वस्तुओं का दशमांश हाँ। अधिक मात्रा में लाने लगे। देख लेना, यहां दूसरा इतिहास 31वां अध्याय में 5वां वचन कहता है उन लोगों ने क्या किया बोलता। इस वचन जब लोगों के पास बताया गया, इज़राइल के पुत्र लोग धान्य, द्राक्षरस, तेल और मद और खेती से जो भी उपज, पहला जो उपज आता है, पहला फल, उसको बहुतायत से लोग लेकर आकर क्या किए, रखे और सारे चीजों में वे लोग परमेश्वर के लिए दशवांश दिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस वचन जब लोगों के बीच में प्रचारा गया तो इज़राइल के पुत्र लोग धान्य के अंदर, द्राक्ष रस के अंदर और तेल के अंदर और मद के अंदर से और धरती से जितने भी उपज आया उसमें से सारे पहला फल और सभी चीजों में दशवांश को पूर्ण रीति से दिए। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है वे लोग पहला उपज, हम लोग जिस कलीसिया में पहले रहते थे उस कलीसिया के अंदर हम लोग बहुत सारे चीजों को सीखा है। जो कोई व्यक्ति नौकरी पे लगते थे, नौकरी पे लगने के बाद जब पहला तनखा जब आता है, वो पहला तनखा पूरा पूरा प्रभु के लिए ले आकर रखते थे, क्योंकि पहला उपज किसके लिए, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और भी हम लोग वचन के अंदर देखेंगे। दूसरा इतिहास 34वां अध्याय में 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। चौतीस 17 34:17। Amen Jesus। जो रुपया यहोवा के भवन में मिला, हाँ, उसको उन्होंने हाँ, उंडेल कर मुखियों, हाँ, और कारीगरों के हाथों में हाँ, सौंप दिया है। देख लेना, यहोवा के भवन के लिए यह लोग पैसे क्या किए, इकट्ठे किए। किसके लिए, यहोवा के भवन के लिए। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब नबी बाहर आने के बाद, जब नबी का सेवकाई चल रहा था, उस समय में कुछ लोग नबी के पास आकर कहने लगे, बिल्ली यदि आप कलीसिया शुरुआत करते हैं तो हम लोग, हमसे जितना हो सके उतना हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि हम लोग एकत्रित होकर आराधना करने के लिए परमेश्वर का एक घर होना जरूरी है। लोग खुद होकर नबी के समय में नबी के सामने आकर कहने लगे, अगर आप कलीसिया यहां शुरुआत करते हैं या बांधते हैं, हम लोग, हमसे जितना हो सके उतना हम लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे। यीशु के पक्ष में बने रहना करके संदेश में नबी इस रीति से बात करते हैं। उन्होंने जब उनकी कलीसिया बांधने के लिए जब जगह जाकर देखे, वो जगह पूरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात किया, इसी जगह पर तू क्या करेगा, भवन को खड़ा करेगा। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर के कार्य के लिए हम लोग अपने हाथ को क्या करना चाहिए, बटाना चाहिए। हम जो भी हालात में क्यों ना हो,
हम हर हालात में हम हमारे जीवन के अंदर हमारे प्रभु को हम लोग क्या करना चाहिए? प्रथम स्थान को देना चाहिए। आप जो भी परिवार चलाने के लिए बजट बनाते हो उसमें पहले प्रथम स्थान में प्रभु को रखिए। प्रभु आपने मुझे कमाने के लिए शक्ति दी, बल दी, सुरक्षित रखा और मेरे जीवन में हमेशा तू प्रथम स्थान पर रहेगा। और जो कुछ भी, जैसे याकूब ने उस दर्शन को देखने के बाद, उस स्वप्न को देखने के बाद याकूब कहने लगा इस जगह में सच में परमेश्वर है। मैं जिस स्थान पर जाता हूं उस स्थान में मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं तो करके मुझे आशीष करेगा। जो कुछ भी तू मुझे देगा उस सारे चीजों में मैं तुझे दशमांश दूंगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु आपसे बात जोते हैं। प्रभु को आप अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान को रखिए ताकि आप बहुतायत से प्रभु से बहुत सारे आशीषों को आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। तो उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा इतिहास 35वां अध्याय में 8वां वचन को। उसके हाकिमों ने प्रजा के लोगों, याजकों और लेवियों और स्वेच्छा बलियों के लिए पशु दिए और हिलिकिया, जकरिया और यहीएल नामक परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को 2600 भेड़ बकरियां और 300 बैल फसल के बलिदानों के लिए दिए। यहां देखिए, फसल के बलिदान के लिए लोग अपने पूरे मन से ले आकर दे रहे हैं। प्रभु के लिए हम जो कुछ भी देते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, पूरे तन मन दिलों से हम लोग प्रभु के लिए करना चाहिए। हम जितने प्रभु के लिए करेंगे, हम जितना प्रभु के काम के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे, उतना ही हम प्रभु से आशीष पाते रहेंगे। हमारा खुदा आशीष का खुदा है। हम सबका खुदा वो आशीष का खुदा है। वहां के लोग अपने पूरे मन से प्रभु के लिए दिए। आज आपको जो स्थान पर रखा रहेगा, प्रभु आपको जो स्थान पर रखा रहेगा, उस स्थान में रहकर आप जितना प्रभु के कार्य के लिए अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं, आप हाथ को बढ़ाइए। आप जितना प्रभु के लिए अपना हाथ को बढ़ाएंगे, उतना ही प्रभु का हाथ आपकी ओर आएगा। आजमा कर देखिए। बहुत कष्ट है, ओके, बहुत तकलीफ है जी। यहां कुरिन्थियों का कलीसिया में से पत्र लिखने के टाइम में पौलुस क्या लिखता है, देखिए। दूसरा कुरिन्थिकरस 8वां अध्याय 2 वचन को पढ़ना। 2 कोरिन्थियर 8:2। देश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनकी उदारता बहुत क्या हो गई? बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। देख लेना, ये लोग भी कष्ट के अंदर थे, तकलीफ के अंदर थे, हालात बहुत ही गंभीर था। फिर भी उस क्लेश के समय में भी अपने पूर्ण आनंद के साथ प्रभु के लिए क्या किए? बोलता वो लोग दिए। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमारा बैंक इस दुनिया के अंदर नहीं है, हमारा बैंक स्वर्ग में है। प्रभु का कलाम कहता है, तुम यहां जो कुछ भी बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। और भी
शास्त्र लेख के अंदर यदि हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग पढ़ेंगे गणना का किताब 7वां अध्याय 10वां वचन। हे बात என்னாகமம் नंबर्स 7:10। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। प्रधान संसार की भेंट को वेदी के पास लेकर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। अपने अपने नियत दिन पर क्या करें? चढ़ाए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर के लिए जो भेंट चढ़ाना है उसको तो चढ़ाना ही है, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और उसके बाद में हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं, वही 7वां अध्याय में 15वां अध्याय में 19वां वचन को पढ़ना गणना में। हे मन जीसस, प्रेज द लॉर्ड। और उस देश की उपज का अन्न खाओ, उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो। तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट को क्या करो? चढ़ाया करो। असेवाट्टुम बलि तमिழ்ல என்னாகமம் 15:19 हिलाने वाला बलि कहता है कि देश के भोजन को जब तुम लोग खाओगे उस समय में उस हिलाने वाले बलि को तुम लोग क्या करो? बोलता चढ़ाओ। उसके बाद में शास्त्र लेख कहता है, पहला इतिहास 16वां अध्याय 29वां वचन में, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा को क्या करो? दंडवत करो। परमेश्वर और उसके नाम की क्या करो? तुम महिमा चढ़ाओ और भेंट के साथ भेंटों को लेकर आकर प्रभु के उपस्थिति में क्या करो? प्रवेश करो और पवित्र श्रृंगार के साथ में यहोवा की क्या करो? नमन करो। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसी में 29वां अध्याय में 5वां वचन को पढ़ना। जीसस। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, सोने की वस्तुओं के लिए सोना, और चांदी की वस्तुओं के लिए 29 में 5 पहला इतिहास। अच्छा हाँ पढ़ो। और कारीगरों से हाँ। बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए हाँ मैं उसे देता हूँ। हाँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? यहां तमिल वासी पे अम्मा ये 9 में है। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, सब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर, हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से, खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। यहोवा के लिए भेंट दी थी। खरे मन और अपने अपने इच्छा से क्या किया? वो लोग परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास 31वां अध्याय 12वां वचन।
2 நாளாகமம் 31:12. तब लोगों ने हाँ, उठाई हुई भेंटें, उठाई हुई बेटे, दशमांश दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई। सच्चाई से क्या किया? पहुंचाई बोलता। परमेश्वर के लिए दान दशमांश के अंदर आप और मैं सच्चाई के साथ में प्रभु के साथ खड़ा होना जरूरी है। वे लोग जो तैयार किए उसमें से भेंट और दशमांश पवित्र किया गए सारी बातों में सच्चाई से वे लोग क्या किए? निकाल कर रखे। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु ने हमें बचाया है, हमें संभाला है, हमें चलाकर लेकर आ रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर का जो है उसे परमेश्वर को अर्पण करना जरूरी है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एजरा के किताब 2 अध्याय 68 वचन, एजरा 2:68। पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों ने हाँ, जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है हाँ, आए, हाँ, तब परमेश्वर के भवन को हाँ, उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए हाँ, अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। अपने अपने कैसे? इच्छा से कुछ दिया। इच्छा से कुछ दिया। वापस पढ़िए उसको। तब पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को हाँ, जो यरूशलेम में है हाँ, आए, हाँ, तब परमेश्वर के भवन को हाँ, उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए हाँ, अपनी अपनी इच्छा से हाँ, कुछ दिया। देख लेना, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अपने अपने हिसाब से वो लोग क्या किए? दिए। परमेश्वर का कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की भवन के लिए। अपना भी जो भवन बनकर तैयार हो गया है, परमेश्वर ने जो हमें अनुग्रह किया उसके नाम की महिमा के लिए, उस भवन को बनाने के लिए। भवन बन के तो तैयार हो गया, लेकिन अभी भी अपना जो है बैंकों की किस्त हर महीना जा रहा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप लोगों को जो स्थान पर प्रभु ने रखा है, आप जो परमेश्वर के कार्य के लिए मदद कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो खुदा का घर है और खुदा का घर के लिए हम जो कुछ भी देंगे उसका हिसाब किताब आपको परमेश्वर के हाथों से आपको क्या करेगा? मिलेगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां अब्राहम के विषय में हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। उत्पत्ति का किताब 14वां अध्याय, अठारह से पढ़ेंगे 14 आदियागमम 14-18 तब शालेम का राजा हाँ, मेल्कीसेदेक हाँ, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ, रोटी और दाखमधु ले आया। हाँ, और उसने हाँ, अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, तू धन्य हो, हाँ, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, हाँ, जिसने तेरे द्रोहियों को हाँ, तेरे वश में कर लिया है। हाँ। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हेमान, यहां शास्त्र लेख कहता है, जब अब्राहम जीत कर लौट कर आने के समय में मेल्कीसेदेक उसका सामना कर रहा है, वहां मुलाकात होने के बाद
मेल्किसेदेक उसको रोटी और दाख मधु दे रहा है, और उसके बाद में उसे क्या कर रहा है, आशीष कर रहा है। आकाश और पृथ्वी को अपने हाथों में रखा हुआ उस परम प्रधान परमेश्वर का आशीष अब्राहम को मिले, और तेरे शत्रुओं को तेरे हाथों में दिया हुआ उस परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति हो करके उसने कहा। और उस मेल्किसेदेक को अब्राहम सारी चीजों में क्या किया, दशमांश दिया करके हम शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। तो इसके बारे में नबी क्या कहता है, डिमोलॉजी करके जो संदेश के अंदर नबी कहता है कि परमेश्वर बुलाता है। जब तक परमेश्वर बुलाता नहीं है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु मसीह खुद बताया, मेरा पिता जब तक एक व्यक्ति को अपने पास नहीं बुलाता, अपने पास आकर्षित नहीं करता या अपने पास खींच कर नहीं लेता, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए सारी बातों में परमेश्वर, हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों। उसके बाद में नबी कहता है कि एक युग में हमारा दादाजी के अंदर हम लोग थे, यह आपको मालूम है क्या? उस बात को डॉक्टर जानता है करके वो बोलता है, और पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाले तुम लोगों को भी वो मालूम होगा। एक जीवन का कोशिका के मानिंद उत्पन्न होने के पहले वो जीवन का कोशिका जो है तुम्हारा दादाजी के डैडी मतलब परदादा उसके अंदर था, उसके बाद में तुम्हारे दादाजी के अंदर आया, उसके बाद आपके पिताजी के अंदर आया, फिर उसके बाद में आपके पिताजी के अंदर से आप क्या किए, बाहर आए, मतलब मम्मी के अंदर जाकर मम्मी के द्वारा क्या किया, आप बाहर आए। और कलाम भी हमें वही सिखाता है, क्योंकि लेवी का दादाजी जो है अब्राहम था, परदादा। अब वो अब्राहम वहां दशवांश देने के टाइम में ये लेवी किधर था, अब्राहम के कमर में था। तो अब्राहम के कमर में होने के वजह से इसका मतलब अब्राहम जब दशवांश दिया उस समय में लेवी भी दशवांश दिया है करके शास्त्र लेख कहता है, और नबी कहता है मैं विश्वास करता हूं। देखिए जीवन का कोशिका वहां से शुरुआत होती है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा पिताजी अब्राहम यहां एक चेहरा लाल हो गया हुआ या लाल हो गया भविष्यवक्ता करके जो मैसेज के अंदर नबी कुछ बातों को करता है। वो कहता है कि मेल्किसेदेक के हिसाब से ना तो उसका मां था, ना तो उनको पिताजी था, ना तो दिन का शुरुआत था, ना तो साल की शुरुआत थी या अंत थी, ना तो जीवन का शुरुआत ना तो जीवन का अंत। परमेश्वर स्वयं अपने सिद्धता के अंदर पहले से ही वो उत्पत्ति के अंदर जो है वो प्रकट हुए, वो एक याजक के रूप में, और सालेम के राजा के दिनों में, मतलब सालेम के राजा के मानिंद जो दिन का शुरुआत नहीं और दिन का अंत भी नहीं, उस परम प्रधान परमेश्वर के वो याजक था। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पहले का फिगर वो था,
उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वही सालेम का राजा है। सालेम का राजा कौन है? सालेम बोलने से शांति, शांति का राजा कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, वही सालेम का राजा। इसका अर्थ है शांति का राजा, यरूशलेम का राजा करके उसका अर्थ है। अपना गोत्र पिता अब्राहम से वो वहां जब अब्राहम दशवांश दिया, वो उसके सामने खड़े थे, और वही आने वाला प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप, उसको बोलता है कि प्री फिगर, पहला ही एक चिन्ह के रूप में था। इस मेल्किसेदेक सोदोम गोमेरा नाश होने के पहले अब्राहम को समतल में वहां मुलाकात किया। वो वापस सोदोम गोमेरा को जो है नाश करने के बाद वो उस राजा से वहां से क्या किया? चीजों को दशवांश के रूप में दिया, और ये सारी बातें जो है आने वाले दिनों में मसीह के लिए एक छाव के रूप में था। अब जुना करार के अंदर इस पवित्र लोग, संत लोग हमेशा हमेशा मसीह के बारे में वे लोग भविष्यवाणियां की। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु आज भी हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। यहां पवित्र आत्मा बोलने से क्या? उस संदेश में नबी कुछ बातों को कहता है। अन्य जाति के अंदर कॉर्नेलियो का नामक एक व्यक्ति था, और वो बहुत ही अद्भुत मनुष्य, दशवांश को देने वाला और लोगों के लिए मंदिर को बनाने वाला, परमेश्वर को आदर करके परमेश्वर का भय मानने वाला, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। कहते हैं कि वो अच्छा प्रेस्बिटेरियन या अच्छा मेथडिस्ट या बैप्टिस्ट, इस तरह का कुछ होगा करके नबी बात करता है। वो बहुत ही अच्छा है। एक दिन परमेश्वर, वो अच्छा है, उसको एक मीटिंग में मैं भेजना चाहता हूं करके, और मैं मेरा टीचर को वहां भेजकर उसके विषय में उसको मैं बताऊंगा करके परमेश्वर ने निर्णय लिया। उस समय में कॉर्नेलियस एक दर्शन को देखा, और उस दर्शन में वो क्या देखता है? तो योपा शहर में मनुष्य को भेज, वहां सिमोन नामक का एक चमड़ा को ठीक ठाक करने वाला व्यक्ति के घर में सिमोन है, उसको तू बुला, सिमोन पतरस को, वो यहां आएगा, वो तेरे लिए मार्ग बताएगा, क्योंकि वो एक चीज को पाया है। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी इस रीति से बात करता है, पवित्र आत्मा मुझे क्या। अब पतरस वहां आकर खड़े हो गए, और कॉर्नेलियस उस पास्टर के सामने दंडवत किया करने के लिए गया, और पतरस वहां कहता है, उठ जाइए, मैं भी आपके समान एक मनुष्य हूं। इन बातों को जब पतरस बात कर ही रहा था, इन बातों को पतरस बात करते रहने के समय में पवित्र आत्मा जो है उनके ऊपर उतर कर आया, और वहां के सारे लोग पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। आप गौर कीजिए, एफेसियन के एफिसुस के अंदर एक बैप्टिस्ट भाई थे। नबी कहता है कि वो पहला एक एडवोकेट था, और बहुत ही सामर्थ्य व्यक्ति, और बहुत ही बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति,
कानून और व्यवस्था को अच्छी रीति से पढ़कर जाना हुआ व्यक्ति, वो बहुत बड़ा हस्ती है। उसका जो शिक्षण जो है बहुत ही ज्यादा था। एक दिन वो पवित्र शास्त्र को क्या किया, पढ़ने के लिए शुरुआत किया, और मेसिया कहलाने वाला एक व्यक्ति आएगा, और उस बात को उसने वहां से जान लिया। जब उसने इस बात को जान लिया, इस यीशु मसीह के बारे में वो जब सुनने लगा, उसने बोला मुझे ये बात दृढ़ हो गई, यीशु ही वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है करके वो विश्वास करने लगा। और कहता है कि मैं बहुतायत से लोगों के बीच में क्या करूंगा, गवाही दूंगा। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु ही मसीह है करके मैं सबके सामने बताऊंगा करके जैसा वो लोगों के बीच में बताने लगा, परमेश्वर उसको अपनी सेवकाई के लिए क्या कर लिया, बुला लिया। यीशु ही प्रभु है करके जब वो लोगों को बताने लगा, नबी कहता है वो वहां उस अपोलो को परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए क्या कर लिया, चुन लिया। आमीन। परमेश्वर हमेशा सच्चे हृदय के साथ में वो बात करता है। आपका हृदय सच्चाई से भरा हुआ होगा, आप प्रभु के लिए सच्चाई से रहोगे तो आपके साथ में प्रभु क्या कर सकता है, बात कर सकता है। क्योंकि शास्त्र लेख हमें सिखाता है जिनका हृदय पवित्र है वे लोग धन्य है, वैसे लोग परमेश्वर को देखेंगे। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अपने कलीसिया के अंदर बहुत लोग आते हैं, आकर चंगाई को पाते हैं, और चंगाई को पाने वाले लोग भी अपने इस कलीसिया जो बांधने के विषय में अपनी मदद को हाथ को बढ़ाए थे और बढ़ाते भी है। जितने भी लोग प्रभु से आशीष को पाए वे लोगों ने मदद किए हैं। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पिछले हफ्ते में एक कॉल आया मुझे अपने कलीसिया में, जो अस्मिता बहन अपने पति के साथ में आते थे उल्लासनगर से। 7 साल हो गया उनका शादी के लिए, और अब प्रभु ने उनका गोद को भर दिया। वो बहन उस दिन कॉल करके बहुत ही आनंदित हुए, पास्टर 7 साल के बाद में प्रभु ने मुझे आशीष किया है। हमारा खुदा आशीष का खुदा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब परमेश्वर इसको क्या कर दिया, सेवा के लिए बुला लिया। वहां आकिला और ब्रिस्किला नामक जो पति पत्नी थे, वे लोग तंबू बनाने वाले, उनके विषय में प्रेरित 18वां अध्याय में वहां लिखा गया है। और ये लोग जो है पौल का दोस्त लोग है। ये लोग कौन है, पौल का दोस्त लोग। अब पौल के हाथों से और उसकी उपदेश से पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग हैं। पौल के हाथों से चिन्ह और चमत्कार को देखा हुआ लोग, और पौल के उपदेश के द्वारा पवित्र आत्मा को क्या किया हुआ लोग है, पाया हुआ लोग है। आज आपको यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा से यदि आप भरना चाहिए, पौल का उपदेश के अंदर आ जाइए। यीशु ही प्रभु है, यीशु का ही नाम श्रेष्ठ नाम है, सारे नामों से ऊंचा नाम है। पापों की क्षमा वो यीशु नाम से मिलता है। यहां लिखता है पौल के हाथों से चिन्ह और चमत्कार को देखे और पौल के उपदेश से पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग, वे लोग वहां बेदारी के मीटिंग्स को क्या किए, चलता है करके उनको सुनने में आया, वहां गए और उस मीटिंग में लगभग 10-12 लोग बैठे थे। वहां उसे देखने के लिए आकिला और ब्रिस्किला जब वहां गए, अब वहां का वो प्रचारक अपोल्लो अपने उत्तम हृदय के साथ
वो प्रचार करने के लिए शुरुआत किया है। और उसको आकिला और प्रिस्किला जो है, ये दोनों जन क्या कर रहा है? देख रहा है। क्या तुम्हें मालूम है वो सच्चाई की ओर कान लगाएगा? अभी पति पत्नी के बीच में बात चल रहा है, इतना उत्तम से ये वचन को प्रीच कर रहा है, तो अगर ये सच्चाई को हम इसके सामने पेश करेंगे, ये इस सच्चाई को क्या कर लेगा? स्वीकार कर लेगा। मीटिंग खत्म हो गई। उसके बाद में वो प्रचारक आकिला के तंबू में गया और अब आकिला और प्रिस्किला जो है, पौलुस के बारे में वो लोग क्या कर रहा है? गवाही दे रहे हैं। हमारे पास इतना ऊंचा चौड़ा एक व्यक्ति है और उसका नाक ऐसा टेढ़ा है और वो एक यहूदी है। वो जब आएगा तो परमेश्वर का वचन को खुलासा करके तुम्हें क्या करेगा? शिक्षण देगा, सिखाएगा। कुछ समय बाद पौल वहां जो है बंदीगृह में था करके नबी बात करते हैं और परमेश्वर उसे वहां रखे थे और वहां भूकंप हुआ। उस बंदीगृह को प्रभु क्या किया? हिलाने के बाद उस बंदीगृह के जो जेलर था उसको और उसके घराने को वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है। आज आप काफी राज्यों में से मैसेज को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम के अलावा दूसरा कोई नाम में आपको उद्धार नहीं है। यहां वो जेलर वचन को स्वीकार किया, चिन्ह चमत्कार को देखा, वचन को स्वीकार करने के बाद वो और उसके घराने के लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या किए? बपतिस्मा लिए। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और उनको बपतिस्मा देकर वहां से निकलकर अब अपोलो के यहां आकर एफिसुस में क्या किया? वो पहुंचा। वहां एक बावी कहने वाली स्त्री थी। वो बावी कहने वाली स्त्री के बारे में नबी बात करने का टाइम जब जब पौलुस सेवकाई के लिए जाता था तब तब ये क्या करती थी? ये परम प्रधान के उद्धार का सुसमाचार को बताने वाले लोग करके ये हमेशा बताती रहती थी। पौलुस कुछ नहीं किया जब तक परमेश्वर उसको बताए नहीं, अब तू इसको आज्ञा दे, इसके अंदर से ये क्या करे? बाहर निकले। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमेशा एक बात ध्यान में होना जरूरी है, जब तक परमेश्वर बताएंगे नहीं, जब तक परमेश्वर कहने के लिए बोलेंगे नहीं, तब तक हम अपने मन से कुछ भी बातें नहीं करना है। यहां जैसा परमेश्वर ने बोला, अब उस स्त्री को देखकर बात कर, वो बावी कहने वाला आत्मा उसके अंदर से बाहर निकलकर जाती रहने दे। तब कहने लगा, उसके अंदर से वो बावी कहने वाला स्पिरिट क्या हो गया? निकलकर चला गया। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, क्योंकि उस बावी कहने वाले स्त्री के जरिए वे लोग वहां बहुत पैसे कमाते थे। उस स्पिरिट को उसने उसके अंदर से क्या कर दिया? भगा दिया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर उस बंदी गृह को हिला दिया, क्योंकि सच्चाई को सुनने के लिए एक झुंड के लोग वहां तैयार प्रभु कर कर रखे। आप जो कुछ भी करोगे, आप परमेश्वर का वचन को बांध कर नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन को कभी भी क्या नहीं कर सकते? आप बांध कर नहीं रख सकते। इसलिए उस आकिला और प्रिस्किला जो है, जो स्थान में थे, वहां अभी पौलुस पहुंच गया। नबी कहता है हो सकता है वो वहां जाकर सैंडविच खाया रहेगा।
में सैंडविच बोल रहा है उधर। उसके बाद में वो लोग उस बेदारी की मीटिंग के लिए रवाना हो रहे हैं। पौल वहां बैठकर अपने अंगोछा को पकड़कर या अपने वस्त्र को पकड़कर उस बैप्टिस्ट प्रचारक प्रचार कर रहा है, उसे वो गौर से क्या किया, सुन रहा है। उसके बाद में पौलुस कहता है प्रचार तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आत्मा में बढ़कर प्रचार करता था। फिर धीरे से अभी पौलुस उस प्रचारक को बता रहा, भाई इतना काफी नहीं है, और भी बहुत सारा खजाना है। पौलुस अपोलो के पास बात कर रहा है, इतना सा काफी नहीं है और बहुत कुछ है। कहता है कि डॉक्टर अपोलो, आपको मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोग जब विश्वासी बने तो क्या पवित्र आत्मा को पाए? जब पूछा तो अपोलो वहां जवाब दे रहा है, हो ऐसा कोई चीज है करके हम सुने भी नहीं, पवित्र आत्मा है करके हमने कभी सुने नहीं। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में वहां पौलुस पूछ रहा है, ऐसा है तो तुम कैसे बपतिस्मा, कौन सा बपतिस्मा लिया? तब वो कहता है, वो लोग इफिसुस के लोग, हम लोग ने जो है यूहन्ना का बपतिस्मा लिए हैं, जो यीशु को बपतिस्मा दिया था। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में पौलुस वहां वचन को उनको क्या कर रहा है, समझा रहा है। यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, पापों की क्षमा के लिए नहीं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में वे लोग अपने पूरे तन मन दिलों से उस वचन को क्या कर रहा है, वो लोग स्वीकार कर रहा है। और यीशु के नाम में क्या किया, वो लोगों ने अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीहा के नाम से वो लोग बपतिस्मा लिए। उसके बाद वो जितने भी लोगों के ऊपर, वहां 12 लोग थे, उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया और सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आ गए। हम उसी खुदा को नमन करते हैं जिस खुदा को पौलुस ने अपना नमन किया था, दंडवत किया था, आराधना किया था, प्रचार किया था। उसी यीशु को आज हम भी प्रचार करते हैं, उसी यीशु को आज हम भी क्या करते हैं, दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। वो यीशु कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख कहता है, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, जो कासर का है वो कासर को दे दो। तो आज हमारे जीवन में हम अपने परमेश्वर की कार्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के काम के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। प्रभु हम हर एक को संभालेगा, प्रभु हम हर एक को मदद करेगा, प्रभु हम हर एक के जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। शास्त्र लेख कहता है, जो थोड़े में उत्तम है उसको ज्यादा दिया जाएगा। आपको जो हालात में प्रभु अभी रखा है, इस हालात में आप प्रभु के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं आप कीजिए, आपको मौका दिया है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। हे बात। तो आइए हम लोग आखिर में एक गीत गाएंगे। Amen. लेके देना। लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा
चलते हैं लंगड़े यहाँ, पाते हैं पापी क्षमा। चलते हैं लंगड़े यहाँ, बहरों की खुलते हैं कान, रोगी रोगों से आते आराम। लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा। लाजर को तूने बुलाया, चल के बाहर कब्र से वो आया। लाजर को तूने बुलाया, चल के बाहर कब्र से वो आया। लाजर को तूने बुलाया, चल के बाहर कब्र से वो आया। लाजर को तूने बुलाया, चल के बाहर कब्र से वो आया। जिसके पुरते भी सुनते आवाज, वो है यीशु नाम, वो है यीशु नाम। लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा। आंधी तूफान भी थम जाते हैं, गहरे पानी भी थम जाते हैं। आंधी तूफान भी थम जाते हैं, गहरे पानी भी थम जाते हैं। आंधी तूफान भी थम जाते हैं, गहरे पानी भी थम जाते हैं। आंधी तूफान भी थम जाते हैं, गहरे पानी भी थम जाते हैं। जब यीशु उठाता है हाथ, यीशु का हाथ, हाथ यीशु का हाथ, लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा। जिस घर में यहोवा है रहता, उस घर में शैतान घुस न पाता। जिस घर में यहोवा है रहता, उस घर में शैतान घुस न पाता। जिस घर में यहोवा है रहता, उस घर में शैतान घुस न पाता। जिस घर में यहोवा है रहता, उस घर में शैतान घुस न पाता। उस घर में हो अपने अमान, जिस घर में हो यीशु का नाम। लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा। पाते हैं पापी क्षमा, चलते हैं लंगड़े यहाँ। पाते हैं पापी क्षमा, चलते हैं लंगड़े यहाँ। बहरों की खुलते हैं कान, रोगी रोगों से पाते आराम। लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा लेके तेरा नाम यीशु, तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु, तेरा। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज के दिन में खुदावन मसीह आपने हमारे साथ में रहकर आरंभ से लेकर अंत तक आपने चलाया करके हम विश्वास करते हैं। खुदा बाप, जितने भी लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं या इसके बाद में इस संदेश को सुनने वाले हैं, उन सभी को तू आशीष करना।
सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करना प्रभु। विशेष करके BLJC के सारे परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ। आशीष करना प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए आपका अनुग्रह का हाथ उनके साथ में निरंतर बने रहने के लिए मैं दुआ करता हूं परमेश्वर। हर एक परिवार को प्रभु जी आपके कार्य में हाथ बटाने का लायक तू बना प्रभु। उनके हाथ के परिश्रम को तू आशीष कर, उनके हर जरूरतों को पूरा कर, तेरे नाम की महिमा के लिए सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। दूर दूर से जितने भी भाई लोग सुने जुड़े सभी को तो आशीष कर। सब घर परिवार के अंदर यीशु नाम का वो आशीष बरकत बने रहे। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाइएगा। प्रभु यीशु आप सबके साथ में रहे। कलीसिया से मेरी नम्र विनती है, परमेश्वर हम सबके साथ है और सारी जरूरतों को वो पूरा करने वाला प्रभु है। मत डरिए, मत घबराइए। हम लोग हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ में रहने वाले लोग। प्रभु ये अपनी बेटी जो कुछ भी दान दशमांश लेकर आए, इसको स्वीकार करना परमेश्वर, और इसके प्रीति जितने भी आशीषों को आपने रखा वो सारा आशीष आपके बच्चों को मिलने देना। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।